इसके पहले के वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 देखा था। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वीडियो है ये सीक्वेंस से है। आप रैंडमली बीच में कोई वीडियो अगर पिकअप करके समझने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं सीक्वेंस में वीडियो बनाता हूं ताकि आपको एक पूरा टॉपिक जो है वो मैं पढ़ा सकूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. Now पहले क्या करना है, the standard process जैसे हम लोग करते कि हम लोग बाइनरी मेथड से 9408 का फैक्टर्स, बाइनरी फैक्टर्स निकालेंगे। या सो इट्स अ फर्स्ट 2 4s are 8, 2 7s are 14, 0 2 4s are 8. Yeah, then 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Then 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12. Then 2 5s are 10, then 2 8s are 16, 2 8s are 16. Then 2 2s are 4, 2 9s are 8, 2 4s are 2, 8. Then 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14. Then 2 7s are 14. So अभी now यहाँ पे 3 will be 2 किसे डिवाइड नहीं कर सकते because the unit place is 7. Then I divide by 3. 3 4s are 12. 3 9s are 27. And then 7 7s are 49. 7 1s are 7. So मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इस नंबर के? 2 into 2 into 2. Then there is another pair 2. 2 into 2 into 2 into, then another 2 into 2 into 3 into 7 into 7. Now if I make a pair of identical prime factors तो ये बाकी पेयर बन गए। सो 2 2 2 and 7. So there is no pair of 3. So this number cannot be a perfect square. Now what I am going to do, if I divide this number by 3, then my quotient will be a perfect square, right? So I divide, so the minimum, so I divide 9408 by 3. Yeah, so if I divide 9408 by 3, my quotient will be 2 2s are 4, here it comes 4, 4 4s are 16, 64 and 49. Okay, so I do little rough work over here, or I'll do little rough work over here. 9408 3 3s are 9, then 4, 3 1s are 3, then 1 0, 3 3s are 9, 1, then 8, 3 6s are 18. So 3136 divided by 3, the quotient is 3136. 3136. Now the factors of 3136 are 2 into 2 into 2 into 2, then into 2 into 2 into 7 into 7. You got it? If I remove this 3 from here, that number comes up to be 3 into 3 31 36. Yeah, so now the square root will be 2 2 2 and 7. So my square root will be 2 into 2 into 2 into 7. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. The square root of the quotient 3136 is 56. Pause the video and note it down.
अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15। नाउ फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, तो हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 क्या है, सो दैट कम्स आउट टू बी इज 90, राइट। इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? अगर हम लोग फैक्टर इन करते हैं तो देखिए 90 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, then divided by 3, 15 3s are 45, divided by 3, 5 3s are 15, divided by 5, 1. So now I have a factor. तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए मेरे, 2 into 3 into 3 into 5. Yeah. Now here I have a pair of a prime number, but here for those two I don't have. So what I need to make it a perfect square, by which number I need to multiply this? So I need 1 5 and I need 1 2. Yeah. So what I did, I multiplied by 10. So now I have a perfect square. Yeah. So it comes out to be 5. When I multiply this number, so the number is 90 into 10, that is equal to 900. या तो नोट डाउन करो। लेकिन यहां पे समझना क्या है, तो एलसीएम पहले निकालना है। सो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। नाउ वंस आई हैव एलसीएम, I try to find whether it's a perfect square or not. Since I didn't find it, मुझे perfect square नहीं मिला, तो मुझे क्या करना था कि उसको perfect square करना था। So perfect square करने के लिए मुझे क्या काम कर रहा था, there was 1 5 short and there was 1 2 short था। So फिर मैंने 5 और 2 को multiply किया। When I multiply by 5 and 2, that means I'm multiplying by 10. So the new number, the required number is 90 into 10, that is equal to 900. Now this number is a perfect square, 2 3 5, and इसका and the square root will be 3 2 3s are 6, 6 5s are 30. Got it? पॉज करके नोट डाउन करो। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं क्वेश्चन जब लिखता हूं तो आप वीडियो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज कर देना, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसको प्ले करके जब आपका खत्म हो जाए सॉल्व करके, तो प्ले करके आपके आंसर मेरे आंसर कंपेयर कर लेना। नाउ ये क्या है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। इनका स्क्वायर रूट का नंबर चाहिए, ओके, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। व्हाट कुड बी अ फॉलोइंग, यहाँ पे एक नंबर पे यहाँ पे पॉसिबल वंस, यहाँ पे डिजिट्स है, वंस डिजिट पॉसिबल वंस डिजिट। तो देखिए नाउ मैं वापस आपको सी, स्क्वायर ऑफ 1 is 1, द नंबर एंड इसका स्क्वायर यूनिट प्लेस। या सो 1 का 1, 2 का यूनिट प्लेस 4, 3 का यूनिट प्लेस 6, 4 का यूनिट प्लेस 6, 5 का यूनिट प्लेस 5, 6 का यूनिट प्लेस 6, 3 का 9 सॉरी, 7 का यूनिट प्लेस 9, 8 का यूनिट प्लेस 8 जा 64, 9 का यूनिट प्लेस 1 एंड 10 का 0। या सो माय यूनिट प्लेस कैन बी 1। अगर मेरा यूनिट प्लेस में है स्क्वायर के, तो पॉसिबल स्क्वायर रूट कैन बी 1 और 9। यू गॉट इट? अगर मेरा यूनिट प्लेस पे 4 है, तो उसका पॉसिबल स्क्वायर रूट कैन बी 2 और 8। या तो इस हिसाब से आपको देखना है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट of the each of the following numbers. Now the unit place is 1. Whose square can be 1? जिसका नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, either 1 or 9. Yeah. So the unit place
of square root could be, मेरा वन फर्स्ट का आंसर इज अ 1 और 9, दोनों में से हो सकता है. नाउ दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस. या फिर माय सेकंड मेरा क्या आएगा 6 है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है 4 या 6. या सो द यूनिट प्लेस कैन बी 4 और 6. थर्ड यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, इसका मतलब क्या हो सकता है 1 और 9. 1 और 9 एंड द फोर्थ वन यूनिट प्लेस पे क्या है 5. सो द स्क्वायर रूट विल हैव यूनिट प्लेस 5. सो इट कैन बी 5. नाउ पॉज द वीडियो. अगर आपका गलत है कहां पे तो उसको करेक्ट कर देना, लेकिन नोट डाउन करते वक्त ये भी नोट डाउन करना, तो आपको पता चलेगा हाउ क्विकली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2. Without doing any calculation, find the number which are surely not a perfect square. मतलब क्या कि हम लोगों को ये नंबर देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं. सो पहले जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, द नंबर यूनिट प्लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट प्लेस क्या क्या होते हैं 1 राइट, उसके बाद 4, उसके बाद 6, सॉरी उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 0. ये जो है ये यूनिट प्लेस में अगर नंबर के हो तो वो नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. होगा ही गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है. लेकिन अगर ये नंबर यूनिट प्लेस में नहीं है, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता. गॉट इट? सो नाउ दिस आई हैव रेफरेंस. नाउ 153 3 कैनॉट बी अ यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर. सो यहां पे आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर as 3 cannot be at unit place of perfect square. Yeah, this is for 1. Not 257, again the same, not a perfect square. As 7 cannot be at unit place of perfect square. Then again same answer, 8 cannot be at perfect square, and the last one can be a perfect square. Since can be a perfect square, as its unit place is not 3 or 7 or 8. 2 और 3 और 7 और 8. क्या? सो यहां पे पॉज करना, मैंने जानबूझ के ये आपके लिए छोड़ा है, इसको आपको इसी टाइप में वर्ड में पूरा लिखना है. ओके, पॉज करके नोट डाउन करो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के पहले क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट consecutive odd number is the square of those many numbers. See, remember,
अगर मेरा 1 और 3 फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है ऑड नंबर्स उनकी सम है, दैट इज हाउ मेनी नंबर्स रेज टू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4. 1 3 5 हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स है, इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 अगर 7 है तो उसका आंसर आएगा 1 2 3 4, 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16. राइट, अगर मेरे 1 3 5 7 लाइकवाइज n नंबर्स है तो मेरा सम आएगा n स्क्वायर. बराबर है. नाउ ये जो है इसको इस्तेमाल करके हम लोग उल्टा करेंगे. ये सम है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हुए आएंगे. नाउ सी, मैं 100 का फाइंड आउट करता हूं. तो फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म 100 माइनस 1, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई. सो माय आंसर इज 99. मेरा सेकंड टर्म क्या था, 3, आई सब्ट्रैक्टेड, दिस इज माय सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म. देन आ गया आंसर 96, मैंने माइनस किया 5, ये मेरा थर्ड टर्म है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. सो मेरा आंसर आ गया 91. नाउ मैंने सब्ट्रैक्ट किया 7, सो 91 में से 7 इट्स 6, सो 84. ये मेरा 84 में से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 9, ये मेरा फिफ्थ टर्म है. मैं यहां पे लिखता हूं टर्म नंबर. या नाउ 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आएगा 75 माइनस 11, ये मेरा 6 टर्म है. राइट, सो नाउ व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 75 तो मेरा आएगा 64, ये मेरा 7 टर्म है. 64 माइनस 13 तो आएगा 51, ये मेरा 8 टर्म है. सो 51 माइनस 15, सो मेरा आएगा 46, 36. नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 70, सो मेरा आएगा 9 टर्म. सो हाउ मच, 36 माइनस 17 कम्स आउट टू बी 19. नाउ आई सब्ट्रैक्ट 19, ये मेरा 10 टर्म है. 19 माइनस 19 0. सो मेरा स्क्वायर रूट क्या हो गया, हाउ मेनी टर्म्स इफ आई ऐड टुगेदर. नाउ सी, अगर मैं 1 3 5 7, so now if I add 1, so here 1, यहां पे मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इन सबको मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा 100. या सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. या इन सिमिलर मैनर नाउ सॉल्व करते 169. सो 169 माइनस 1, सो मेरा आंसर आ गया. सी यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया है, वी कैन कंटिन्यू दैट एज वेल, बट इट डोंट बी लेजी. सो ये मेरा फर्स्ट टर्म. देन 169 माइनस 3, सो ये मेरा सेकेंड टर्म. सॉरी, 168 माइनस 3, सो इट कम्स आउट टू बी 165 माइनस 5, ये मेरा थर्ड टर्म. ओके, सो 160 माइनस 7, ये मेरा फोर्थ टर्म. सो इट कम्स आउट टू बी 153 माइनस 9, ये मेरा फिफ्थ टर्म. सो इट कम्स आउट टू बी 3 गया 145 माइनस 11, ये मेरा सिक्स टर्म. सो 134 माइनस 13, ये मेरा सेवन टर्म. सो माइनस 13, सो 121 माइनस 15, ये मेरा 8 टर्म. सो 151 से 15 गया, सो 21 माइनस 15 किया तो 6 आ जाएगा. राइट, सो इट कम्स आउट टू बी 106 माइनस 17, ये मेरा 9 टर्म. सो इट कम्स आउट टू बी 17, सो 89. राइट, या 89 आ गया बराबर. सो 106 7 चला गया, सो 199 माइनस 10 89 माइनस 19, ये मेरा 10 टर्म आ गया. राइट, सो 89 माइनस 19 के बाद
आ गया मेरे पास 17 माइनस 21, ये मेरा 11 टर्म। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो नाउ 70 माइनस 21 कम्स आउट टू बी आपका आ गया 69 एंड देन 49 माइनस 23, ये मेरा 12th टर्म है। या सो देन आई सबट्रैक्ट 49 माइनस 23, इट कम्स आउट टू बी 26 माइनस 25, ये मेरा 13 टर्म। यहाँ पे एक हाँ तो भी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे 26 या 23, यहाँ पे 25 आना चाहिए। सो समवेयर देयर इज अ मिस्टेक। सो यहाँ पे आएगा आपका 25, खाली चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक हुई। सो 25 माइनस 25 0। सो यहाँ पे हम लोग रीचेक कर लेते हैं। 160 153 बराबर है 153 माइनस 145, तो यहाँ पे 144 बनेगा, राइट। 153 माइनस 9, सो या 154, तो यहाँ पे आपका आएगा 133 माइनस 11, सो यहाँ पे आपका आएगा 120, तो 120 यहाँ पे आएगा आपके 120 105 में से 17 जाने के बाद यहाँ पे आपका आएगा 88 में से अगर आपके 19 निकल गया, सो 19 जाने के बाद 88 माइनस 68 और 61, या 61 में से 21 चले गए, तो यहाँ पे आ गया आपका 61 माइनस 21, सो 40, सो 40 में यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, 21 23, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में जो गलती है वो आप फाइंड आउट कर लेते पॉज कर। तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आ रहा है 69, तो 69 माइनस 21 कम्स आउट टू बी 48 माइनस 23 कम्स आउट टू बी 25, and 25 minus 25 comes out to be 0. So what the square root of the 169 is 13. So हम लोग अगर 1 3 5 7 9 11 13 15 इन सबको अगर ऐड कर दे तो आएगा 169। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर दो।